آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے، ثانی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، رمضان مبارک ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور اب تب میں آنے ہی جا رہا ہے۔ میں تمام برادران اسلام کو رمضان مبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو تمام اہل ایمان کے لیے باعث رحمت و برکت بنائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام دنیا انسانیت کے لیے بھی اس کو خیر کا، سعادت کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس کی اسلام میں بڑی اہمیت اور عظمت بتائی گئی، جیسے کہ احادیث نبویہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ، مسلمانوں پر کوئی مہینہ رمضان سے زیادہ بہتر نہیں گزرا۔ معلوم ہوا کہ رمضان تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل اور خیریت والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلہا۔ فرمایا کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا خیر اور خوبی اور برکت رکھی ہوئی ہے تو میری امت اس بات کی تمنا کرے گی کہ رمضان تو پورا سال رہے، مگر چونکہ یہ فضائل اور یہ خوبیاں اور یہ کمالات اور برکات ہمارے علم میں نہیں ہے، اس لیے ہم پورے سال کے بجائے ایک ہی مہینے پر اکتفا کر لیتے۔ اگر کوئی آدمی اس حدیث میں غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بے شمار خوبیاں اور بے شمار کمالات اور برکات رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا رمضان مبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادتوں اور نیکیوں اور اس کی رضا جوئیوں میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف نے جب رمضان کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس کی برکات کا مشاہدہ کر لیا تھا تو ان کا حال یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرات سلف صالحین رمضان سے 6 ماہ پہلے ہی سے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں صحیح طور پر عبادت کرنے اور اس میں مجاہدہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور جب رمضان مبارک رخصت ہو جاتا، چلا جاتا، تو باقی سال اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما، اس کی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو، تراویح کو قبول فرما۔ یہ تھا حضرات سلف صالحین کا طرز۔ محترم حضرات، اب غور کیجئے کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فضائل و برکات رکھے ہیں۔ رمضان کے فضائل میں سے
एक फजीलत हदीस के अंदर यह बयान की गई, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुफ़िदत शयातीन। रमज़ान जब आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को भी बंद कर दिया जाता है। उलमा लिखते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल देने से इशारा है अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाने की तरफ। बाद रिवायात में इस हदीस के अंदर अबवाबुर रहमा के अल्फाज भी आए, क्योंकि जन्नत अल्लाह की रहमत की मजहर है, इसलिए बाज़ जगह पर जन्नत का जिक्र आया और बाज़ जगह पर रहमत का जिक्र आया। और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाने से इशारा है इस बात की जानिब कि अल्लाह ताला अपना गज़ब और नाराज़ी बंदों से उठा लेते हैं। और इस हदीस के अंदर जो ये आया है कि शयातीन को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को बंद कर देने का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि रमज़ान आते ही बहुत सारे गुनहगार बंदे अल्लाह की जनाब में आ जाते हैं, मस्जिदों की तरफ लपकते हैं, इबादतों की तरफ लपकते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाजें पढ़ने लगते हैं, जिक्र करने लगते हैं, तिलावत का एहतमाम करने लगते हैं, गुनाहों से बाज आ जाते हैं, शराबी बाज आ जाता है, जिनाकार बाज आ जाता है और मुख्तलिफ किस्म के गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा कर कर के अल्लाह की जनाब के अंदर आ जाते हैं और अल्लाह के सामने आजिज़ी और इंकिसारी करते हैं, रोते और गिड़गिड़ाते हैं। ये जो गुनहगार बंदे गुनाह छोड़कर अल्लाह के दरबार में आ जाते हैं, ये दर हकीकत शयातीन को बंद कर देने और उनके असरात और रसूख को बंद कर देने की वजह से होता है। रमज़ान मुबारक की एक फजीलत ये बयान की गई है, एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक के लिए पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है, यानी रोज़ रोज़ उसकी सजावट होती रहती है। यहाँ तक कि रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो पूरे तौर पर उसको सजा कर रख दिया जाता है। मालूम हुआ कि रमज़ान की एक बड़ी फजीलत ये भी है। एक फजीलत हदीसों में ये आई है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला की जानिब से रमज़ान में हर रात और दिन में जहन्नम से कैदियों को आज़ाद किया जाता है, यानी जो जहन्नमी है जिनके ऊपर जहन्नम को लिख दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक की बरकत से उनको जहन्नम से आज़ादी का परमाना अता करते हैं। और फरमाया कि हर मुसलमान के हक़ में हर दिन और रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। कितनी बड़ी अजीम फजीलत है कि हर मोमिन की एक न एक दुआ हर रोज़ कबूल होती है। एक फजीलत ये बयान की गई, हज़रत सलमान फ़ारसी के एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने में नफिल इबादत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, वो उस शख्स के मानिंद है जो और दिनों में फ़र्ज अदा करे। जो इस महीने में एक फ़र्ज अदा करे वो उस आदमी की तरह होगा जैसे दूसरे दिनों के अंदर कोई 70 फ़र्ज अदा करे। भाइयों और बहनों, इन हदीस से मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को बंद कर दिया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, आमाल का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, नफिल का फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का 70 फ़र्जों के बराबर, और हर मोमिन की एक दुआ दिन और रात में ज़रूर कबूल की जाती है, जहन्नमियों को दोज़ख से आज़ादी अता की जाती है। ये सारे फ़ज़ाइल हैं रमज़ान मुबारक के, मगर ये फजीलत किसको मिलेगी? ये उसको मिलेगी जो रमज़ान की कद्र करेगा, रमज़ान को सही तौर पर गुजारेगा और उसको नेकियों और आमाल सालिहा से मामूर रखेगा। इसीलिए हदीसों में यह भी आता है कि जो रमज़ान में इसकी बरकतों से महरूम रह गया वो वाकई बड़ा महरूम है। एक हदीस है हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा जब रमज़ान आ चुका था
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना आ चुका है जो बड़ी बरकतों वाला महीना है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी रहमत से ढांप लेते हैं, तुम पर रहमत नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी खताओं को माफ़ करते हैं और तुम्हारी दुआओं को कबूल करते हैं और तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं, यानी एक दूसरे से नेकियों में बढ़ने का और रेस करने का जो सिलसिला होता है, अल्लाह उसको देखते हैं और मलाइका पर फख्र फरमाते हैं। फिर आपने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला को नेकियां दिखाओ और उसमें रेस करो। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। इस हदीस में तनाफुस का मतलब ये है कि लोग आपस में एक दूसरे से नेकी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें, रेस करें। अगर हम अपने एक साथी को देखें कि वो बड़ी इबादत में लगा है, जिक्र अज़कार में लगा है, तिलावत में लगा है, नवाफिल की पाबंदी में लगा है, तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी इसी तरह इबादत करें और नेकियों में आगे बढ़ते चले जाएं। इसका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रमज़ान में नेकियों में रेस करो। इससे मालूम हुआ कि रमज़ान की बरकतों से वही फ़ायदा उठा सकता है जो नेकियों में दिलचस्पी लेता है, वरना महरूम रह जाता है। इसीलिए आखिर हदीस के अंदर फरमाया कि वो आदमी बड़ा बदनसीब है जो इस माह में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। भाइयों और बहनों, अब रमज़ान शुरू ही होने जा रहा है, तो हम सबको इस बात का अहद करना चाहिए कि हम रमज़ान को ज़ाय नहीं करेंगे और रमज़ान की रहमतों से महरूम नहीं रहेंगे, बल्कि अब तो लॉकडाउन की वजह से अल्लाह ताला ने बड़ा ही खूब मौका दे दिया है कि हम इस रमज़ान मुबारक को खूब नेकियों और आमाल सालिहा से मामूर करें। शायद इससे पहले कभी ऐसा मौका न मिला हो। पहले कुछ दुकान की मसरूफियत, ऑफिस की मसरूफियत, तिजारत की मसरूफियत, स्कूल की मसरूफियत और किसी किस्म की मसरूफियत हर एक के साथ लगी रहती थी, लेकिन इस वक्त हमें सिवाय फुर्सत के कुछ नहीं है। लिहाजा इस फुर्सत के वक्त को काम में लाकर रमज़ान को बेहतरीन अंदाज से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी सुनते चलिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रमज़ान मुबारक में क्या अंदाज और क्या हाल हुआ करता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान शद्द मिज़रहु सुम्मा लम याति फ़िराशहु हत्ता यंसलिख़। इसका तर्जुमा यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जब रमज़ान दाखिल हो जाता तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इज़ार को कस कर बांध लेते। मतलब यह है कि खूब अच्छी तरह इबादत के लिए तैयार हो जाते। फिर जब तक रमज़ान गुजर न जाता आप बिस्तर पर तशरीफ न लाते थे। हज़रत आयशा ही से एक और हदीस यूं मरवी है कि उन्होंने फरमाया, इज़ा दख़ल रमज़ान तग़य्यर लौनुहु व कसरत सलातुहु वब्तहला फ़िद्दुआ व अशफ़क़ मिन्हु। जब रमज़ान आता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता और आपकी नमाज ज़्यादा हो जाती और आप दुआ में गिड़गिड़ाने लगते और रमज़ान की हिर्स किया करते थे। लिहाजा हमें भी रमज़ान के लिए ख़ुद को तैयार कर लेना चाहिए और इसमें हमें चंद बातों का एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहले तो रोज़े का एहतमाम, क्योंकि वो तो हर आकिल बालिग और सेहतमंद इंसान के ऊपर फ़र्ज कर दिया गया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लिहाजा कोई ऐसा ना हो जो बिला वजह रोज़ा छोड़ दे। बिला वजह रोज़े को छोड़ देना सख्त तरीन गुनाह की बात है। दूसरे, नमाज तरावी का एहतमाम कि 20 रकत तरावी पढ़ा करें। अब मसाजिद में तो सिर्फ चंद लोग और मखसूस लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग अपने अपने घरों में तरावी पढ़ने का एहतमाम करें।
اور اگر کوئی حافظ موجود ہے تو حافظ کے ساتھ پورا قرآن کریم سنیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور اگر کسی کو حافظ میسر نہ ہوا، ان کے گھروں کے اندر حافظ کوئی موجود نہیں ہے، تو جو کچھ یاد ہو اسی کو لے کر پڑھے، اور کم از کم علم تر کیف سے 2 مرتبہ اس کو دہرا کر 20 رکعت پڑھ لیا کرے۔ اور گھر کی عورتیں بھی تراویح میں اگر شامل ہونا چاہتی ہیں تو وہ شامل ہو جائیں، مگر نماز میں عورتیں مردوں سے پیچھے کھڑی ہو، مردوں کی صفوں کے اندر، اگرچہ کہ وہ مرد ان کے اپنے گھر کے ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، باپ ہو، لیکن ان کے ساتھ میں کھڑی نہ ہو بلکہ ان سے علیحدہ پیچھے کھڑی۔ اور تیسرے یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ اسی ماہ میں قرآن کریم کا نزول آسمان دنیا پر ہوا تھا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا معمول بھی تھا کہ آپ قرآن کریم کا دور نکالا کرتے تھے۔ چوتھی بات، بڑے اہتمام کے ساتھ تمام گناہوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے اور مختلف قسم کی فضول حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ جس طرح نیکیوں کا ثواب رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے سب کچھ مانگے، اور اس وباء عظیم کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، کرم سے اس کو دور کر دے، اور ہمیں مساجد میں دوبارہ جمع ہونے اور نمازیں پڑھنے، جمعہ پڑھنے، تراویح پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔